स्टार्ट कर रहे कि ऑब्वियसली जो करंटली जो परफॉर्मेंस चल रहा है, सो क्या उसके बारे में आपका थॉट है? और अभी तो इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट डायरेक्ट जून जुलाई में है। हाँ, बहुत टाइम है हाँ अभी वही। एक्चुअली। इससे ट्रांजिशन से जब भी टीम गुजरेगी तो टर्बुलेंट टाइम्स होंगे। सो आई थिंक इट्स ओनली फेयर फॉर अस टू बी अ लिटिल माइंडफुल विद आवर एक्सपेक्टेशंस कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक द टीम, दिस यंग टीम exceeded our expectations in England. We didn't expect them to go there and draw the series, but we did. So we celebrated that, of course. But and then we beat West Indies at home. I mean, par for the course. But so this series came as a bit of a shock. But whenever you're going through a transition, I mean, these things do happen. So it is not nice, but transitions are like that. They are slightly turbulent, and when there is turbulence, then it does not feel nice. But that's the way it is. सर डू यू थिंक 3 अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग हेड कोच होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कैप्टन कैप्टन भी 3 अलग अलग नहीं होने चाहिए फॉर अ सिंपल रीज़न कि ये नवंबर वाज अ ग्रेट मंथ एक्चुअली। वी प्लेड वनडे टेस्ट मैच एंड T20s in a span of 3 weeks. So now if you have 3 different coaches and 3 different captains, Indian cricket cannot go forward, because then every coach and captain will want a certain roadmap, and that is not going to align with the second guy or the third guy. तो बुमराह का लोड मैनेजमेंट कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज एवरी कैप्टन वुड वांट बुमराह इन हिज साइड, और शुभमन गिल मस्ट प्ले एवरी सिंगल गेम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो क्रिकेट विल नॉट रियली ग्रो, एंड it may be, at this point in time it feels okay, it's a bit much, but I don't recommend 3 captains, 3 coaches for 3 formats, no way. और 3 टीम्स सर 3 फॉर्मेट के लिए? कहाँ बनती है 3 टीमें यार? थोड़ा सा ओवरलैप तो होगा. आई मीन देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ ओवरलैप, लेट्स बी फेयर. Like Rahul plays 2 formats, he doesn't play the T20Is. Rishabh Pant is also the same, he's not in the T20 setup. Surya is nowhere in the white days or one day setup. Yashasvi is there and not there, he's only playing test cricket, hardly any one days, not playing T20Is at all. So there is not a lot of overlapping, but if you were to say कि सब कुछ नया होना चाहिए, 36 लोग अलग अलग होने चाहिए, I mean that's not fair, because wouldn't you want Bumrah and Shubman Gill and whoever is doing well to play across 3 formats? You wouldn't say that okay नहीं Bumrah है तो अच्छा पर हम एक ही खिलाएंगे, क्योंकि हमें तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टीम खिलानी है. That doesn't work. पुजारा और रहाणे को वापस लाना चाहिए? रिटायरमेंट ले लिया, देखो पुजारा तो नहीं वापस आ रहा, गारंटीड है, और रहाणे भी आई मीन he'll have to really find a way to get back into the side, क्योंकि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे, is he among the top 5 run scorers in the last 3 seasons? If the answer to that question is no, then उसको लाना चाहिए ना जो टॉप में जो रन बना रहा हो. आई मीन देयर इज मेरिट इन एन आर्ग्यूमेंट दैट यू वांट टू रिवॉर्ड एंड एक्नॉलेज डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इट्स वैल्यू, पर अगर वहाँ कोई रन बना रहा हो उसको ना सोच के अगर हम किसी और की तरफ जाएंगे तो इट वोंट बी राइट. Sir, in addition to the same question, do you think that considering Rohit and Virat's fitness and form, they should consider their retirement? See, retirement is a very personal thing. I won't tell my brother or my father to actually reconsider. Retirement कब लेनी है, किसने लेनी, क्यों लेनी है, I mean it's a very very personal thing. So I will not comment on that. And Indian cricket is not an entity that has ever approached anyone to actually revoke their retirement. इंडियन क्रिकेट ने मतलब सुनील गावस्कर साहब से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सबने कभी ना कभी तो रिटायरमेंट ली है, और जब भी जाते हैं कोई ना कोई वॉइड छोड़ के जाते हैं, एंड यू फील देयर और अदर यू मिस देम, बट नोबडी गोज बैक टू एनीवन. सो इफ दे वांट टू एक्चुअली कम बैक, आई मीन दैट इज एंटायरली अप टू देम, बट इंडियन क्रिकेट तो नहीं जाएगी किसी से भी पूछने के लिए कि प्लीज़ आप आ जाओ खेल लो, क्योंकि इंडियन क्रिकेट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी रोबस्ट स्ट्रक्चर. थोड़ा सा टर्बुलेंस है, but we'll be fine. Okay, and sir, how much it will be a disappointed for you that Indian batters are not performing well on Indian pitches? That's sad, but that's not new. अगर आप पिछले 5 साल से उठा के देखेंगे तो आप यही पाएंगे, जहाँ पे भी टर्निंग पिचेस हुई तो हमने तो मुक्की खाई है. सो वी आर नॉट अ ग्रेट, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वी आर नॉट ग्रेट प्लेयर्स ऑफ स्पिन ऑन अ टर्निंग पिच. We are almost as good or bad as our opponents. So it is not a good story, but the problem is that most of the cricket across the globe is played on such pitches that it doesn't encourage you to actually even practice the skills that are required to survive and thrive on tougher conditions. तो वो हम करते ही नहीं है. तो once in a while जब सामने पड़ जाती है तो then we realize oh we are not ready for it, and then we move to better pitches. So थोड़ा sad है कि we don't play spin as well as we used to.
इसी को जोड़कर हरभजन सिंह ने अभी बीच में एक स्टेटमेंट किया था कि इंडिया के पास कोई स्पेशल ऑफ स्पिनर नहीं है और जो पिच है वो भी मतलब थोड़ा सा अलग बनाना चाहिए, स्पिनिंग ट्रैक पे हम अच्छे खेल नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर ये बात सही है जो भज्जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सी तनुष कोटियान करके एक हैं जो ऑफ स्पिनर हैं, उनको कभी मौका मिल सकता है, हो सकता है आने वाले समय में उनको मौका मिले। अभी वॉशिंगटन सुंदर खेले और जब वो खेले तो पुणे में अगर मैच भारत जीत जाता तो प्लेयर ऑफ द मैच होते, और उसके बाद वानखेड़े में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इनफैक्ट वो और अश्विन साथ में खेल रहे थे और अश्विन से बेहतर प्रदर्शन जो था वो वॉशिंगटन सुंदर का था। तो अभी अगेन डेवलपिंग स्टोरी है, नया करियर है, शुरुआत से ही सारी पिक्चरें हिट हो जाएं ऐसा कोई सुपरस्टार होता नहीं है, जो होता है फिर वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है। तो जो नया शुरू कर रहा है उसके साथ वील हैव टू बी अ बिट मोर पेशेंट कि ये वही लड़का है जिसने आपको मैच जिता के दिया या फिर सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिया, मैनचेस्टर में मैच बचा के दिया। तो कभी होगा ऐसा कि शायद उतना अच्छा नहीं खेलेगा, पर अगर हम फटफट करके चेंज करते रहेंगे प्लेयर्स को तो प्लेयर्स नहीं बन पाएंगे। और पिचेस की इज एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू प्ले ऑन गुड पिचेस एंड आई रियली होप दैट नेक्स्ट टाइम वी प्ले टेस्ट क्रिकेट एट होम विच इज एक्चुअली इन 2027 और 26 में तो इंडिया